میرے جو دوست ہیں جو زیادہ تر سرخے تھے کہ انہیں مت بلایا کرو، یہ سی آئی ڈی تمہارے پیچھے لگ جائے گی. تو اس زمانے میں ہم نے جس میں بریک میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جس میں میں کیونکہ شاکر صاحب کا شاگرد تھا تو وہاں ان کے پیچھے چلا جاتا تھا. تو اس زمانے میں وہاں صوفی تبسم، فیض صاحب، شاکر علی، ناصر کاظمی، انتظار حسین، فیروز نظامی، کمال احمد رضوی، ضیاء محی الدین، اٹ واز کہا جا سکتا ہے کہ فاؤنٹین ہیڈ تھا ہمارے فائن آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس کا، ہمارے لٹریچر کا، ہمارے شاعری کا. اور یہ سب لوگ جب یہ اکٹھے ہوتے تھے تو یہ ان کے سب کے میڈیمز کیونکہ فرق تھے تو ایک بہترین کھچڑی پکتی تھی، ایک کاکٹیل کی صورتحال، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے شعبے کی بات کرتا تھا تو ایک انریچمنٹ اس میں سے نکلتی تھی. تو وہ مجھے کیونکہ یاد تھا تو ہم نے پھر سوچا بعد میں کہ یہ شہر لاہور جو ہے، یہاں کے اوپر یہاں کافی ہاؤس تھا جہاں تقریباً یہ سب لوگ زیادہ تر ادبی شخصیات بیٹھتی تھی. شینیز لنچ ہوم تھا، شیزان میں پولیٹیشین وغیرہ بیٹھتے تھے. تو سب جگہ ایک بیٹھک کا سما ہوتا تھا اور ایک یہ ڈسکورس اور مکالمہ اور بحث اور بات چیت کا معاملہ تھا، جس سے کہ یہ ساری رچنس جو ہے ہماری تہذیب کی اور ہمارے انٹلیکٹ کی اور ہمارے لٹریچر کی وہاں سے اوز آؤٹ کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ کافی ہاؤس بند ہو گیا اور لنچ ہوم بند ہو گیا، پاکٹی ہاؤس بند ہو گیا، وہ بیٹھک جو جھوپڑی کی تھی وہ ختم ہو گئی. مگر اس کے بعد جو ہم نے سوچا کہ جو اس کے جو میگنیٹس تھے وہ اس طرح کے لوگ تھے جیسے انتظار حسین صاحب. تو ان کے گرد ہم نے ایک محفل سی سجائی اور ان کی وجہ سے پھر انہی کی طرح کے تمیز کے اور قیمتی لوگ آنے شروع ہوئے. تو انتظار حسین صاحب کے ہوتے ہوئے شہزاد احمد صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ہماری ٹریڈیشن یہ تھی کہ ہم شروع کرتے تھے میوزک، کچھ خاص میوزک سلیکٹ کر کے وہ سناتے تھے، اس پہ بات کرتے تھے، پھر گفتگو میں چلی جاتی تھی بات سوشو پولیٹیکل معاملات میں، اور پھر اخیر ہم اس کو کنکلوڈ جو شاعری سے کرتے تھے. تو اب ہمارے جو گرو ہیں وہ رحمان صاحب ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ انریچمنٹ ہے کہ مسعود اشر صاحب جیسے لوگ بھی ہماری بیٹھک میں آ جاتے ہیں. یہ سب برکت ان بڑے ناموں کی ہے. تو اگر آپ کی اب یہ اجازت ہو تو میں روٹین میں جیسے میوزک ہمارا ہوتا ہے، ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی تھوڑی لٹریچر میں، شاعری میں، کلاسیکل میوزک میں بھی نظر آتا ہے کہ اب روشن آرا، سلامت علی جیسے فنکار ہمارے پاس نہیں رہے، اور شاعری میں اب شاعر ہیں لیکن اس لیول کی حلقہ ارباب ذوق میں بھول گیا بتانا کہ یہاں پہ میرا جی کے زمانے میں حلقہ ارباب ذوق میں کرفیو میں بھی لوگ پہنچ جاتے تھے، وہ بھی ایک قسم کی بیٹھک تھی. اور اسی طرح ترقی ادب کے زمانے میں، اور یہ سب گٹ جو تھے یہ سب اب ختم ہو چکے ہیں. تو اس کو ریوائیو کرنے میں ہمارا کوئی ایجنڈا یا کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں ہے. یہ جو میگنیٹس ہیں انتظار حسین صاحب کے، ان کے گرد لوگ جمع ہو جاتے تھے. اسی طرح اب یہ رحمان صاحب کی شخصیت کے گرد ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اس میں پیٹرن وہی ہے کہ اس میں صرف ادیب نہیں ہیں، اس میں اور بھی لوگ ہیں. میں تو بے ادب آدمی ہوں، نقشہ نویس ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں. اور اسی طرح ایک یہ جو کراس میڈیم فرٹیلائزیشن میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر صرف شاعر اکٹھے ہوں
یا صرف مصور ہوں تو وہ ٹریڈ یونین سی بن جاتی ہے کہ اس کی تصویر اتنے میں بک گئی اور اس طرح کی باتوں پہ چلی جاتی ہے. لیکن جب یہ مختلف میڈیمز سے لوگ آتے ہیں تو بات پھر کامن فیکٹرز آف کریٹیوٹی پہ چلی جاتی ہے, تو اس سے بڑی انریچمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو میوزک سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ کلاسیکل میوزک کے بعد جو غزل گوئی ایک کمال کی ایک صنف ہے, دو دھاری تلوار ہے, جس میں کلام اپنی جگہ اور راگ اور میوزک اپنی جگہ ایک زبردست کمبینیشن بنتا ہے, جس میں سب کانٹیننٹ میں ہندوستان میں اتنا کلاسیکل میوزک اور میوزک ہے وہاں, لیکن ہمارے ہاں جو غزل گوئی میں جو مقام ہم نے پیدا کیا ہے, سوائے بیگم اختر کے جن کے بڑے کمالات ہیں, وہاں ہم نے اقبال بانو, فریدہ خانم اور ان سب سے بڑھ کے مہدی حسن نے غزل کی میڈیم کو ہائیسٹ لیول کے اوپر لے کے گئے ہیں. تو اب یہ ہم شروع کرتے ہیں غزل, ان کا میوزک کا پروگرام. یہ میاں کی ملہار کے اوپر بیسڈ ایک غزل انہوں نے گائی ہے, اس سے ہم شروع کرتے ہیں. ایک بس تو ایک بس تو مجھ سے خفا ہو بیٹھا, ایک بس تو مجھ سے خفا ہو بیٹھا, میں نے جو سنگ تراش
डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, मैंने कहा मैं यही चाह रहा हूँ। तो उठ बैठ मुझसे खफा शुक्रिया 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 बैठक में हम कोशिश करते हैं कि मौसीकी के बारे में रागाज जो हैं वो सिर्फ क्लासिकल बैठकों के अलावा ग्रेट म्यूज़िक हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन फिल्म म्यूज़िक। तो मैंने सेलेक्ट करके मैं आपको भी सुनवाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ गीता दत्त इन ए फिल्म सॉन्ग। अकेली रामा डाल से
अब ज़रा क्लासिकल की तरफ कोई 5-6 मिनट का म्यूज़िक, उसके बाद इंशाल्लाह और दूसरी तरफ चलेंगे। ये राग देशकार है, केसर भाई केरकर का गाया हुआ, रिकॉर्डेड एट द एज ऑफ 70। चांद पे जाते हुए वर्क्स ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस म्यूज़िक की फॉर्म में ले जाया गया था चांद गाड़ी में। उसमें जो म्यूज़िक सेलेक्ट हुआ था दुनिया में, उसमें ये रिकॉर्डिंग थी केसर भाई केरकर की।
last 3 minutes of music. इसमें 2 राग इकट्ठे गए हैं एक जुगलबंदी में देश पांडे का गाया हुआ ये जिसको रिलेट किया हमने आर्किटेक्चर के साथ. आई डिस्कवर्ड के म्यूज़िक इतना रिलेट करता है जो रिदम हमें बिल्डिंग में चाहिए होता है, तो उसकी एक मिसाल सर्च करी है हमने इसमें. तो ये भी एक 3 मिनट की वीडियो है ये. विदाउट यस ऑफ कोर्स यस. मैं रहमान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ इंतज़ार साहब के ज़माने से जो सिलसिला चल रहा है उसका कुछ जिक्र करें. रहमान साहब और नकी साहब इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल जर्नलिस्ट दैट वी एवर हैड, एज यू नो. रहमान से बात कर रहे हैं. बताइए किस इंतज़ार पे जैसा नहीं वो ठीक है. मैं पहले मैं ये अर्ज करूं कि इस बैठक में सब लोग कॉन्शियस लोग हैं और गैर मुतमईन लोग हैं, और उनके अब इंतज़ार साहब किसी और बात पे गैर मुतमईन होते थे और डॉक्टर मुबशिर किसी और बात पे गैर मुतमईन होते थे. बिल्कुल सही.
किसी बात पे मसूद अशरफ साहब गैर मुतमईन होता था, तो किसी दूसरी बात पे नकी साहब तो मुतमईन हो ही नहीं सकते थे। नकी साहब तो बहुत ही होते थे। तो यहाँ बैठकर मेरे दादा के सैलून में बैठ के, जैसे 18वीं सदी में पेरिस में सैलून हुआ करते थे, जो एक बहुत हसीन और ज़हीन खातून चलाती थी, जिसमें कभी कभी वॉल्टेयर साहब भी आ जाते थे। तो हम भी ये समझते हैं कि हमारा भी सैलून जो है वो ऐसा ही है, अगरचे हम में कोई वॉल्टेयर नहीं है। दूसरी बात ये थी कि हम सारी रिवायतों को इकट्ठा करते थे और हम जिंदगी के उस जिंदगी में चले जाते थे जो हमें नसीब नहीं है लेकिन होनी चाहिए, या जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे मौसीकी से हमारा रिश्ता टूटा नहीं है और अदब की हर तहरीक से हम जुड़े हुए हैं। तो इंतज़ार साहब तो हल्का अलबाब ज़ौक़ के इमाम थे ना, और वहाँ ऐसे भी थे जो अंजुमन तरक़ीब हसन मुसन्नफ़ीन में चादरें बिछाते आए थे। तो दोनों रिवायतों का एहतराम होता था। शहजाद साहब होते थे, बड़े शायर थे। इंतज़ार साहब एक अम्ब्रेला बन के बैठ जाते थे कि जिनके होते हुए किसी से गैर शायराना बात करना मुमकिन नहीं था और गैर मुअद्दबाना बात भी करना मुमकिन नहीं था। लेकिन उसमें ये था कि फिर हम सिर्फ गुज़िश्ता शोरा के मुतक़िद नहीं थे, बल्कि जो हम में मौजूद थे वो भी थे, होते थे। मुन्नू भाई आए, उन्होंने अपने शेर सुनाए। शहजाद साहब मुस्तकिल जब तक रहे वो करते थे, और कम से कम मैंने शहजाद साहब की शायरी को बैठक में बैठकर जितनी बेहतर तौर पर समझा, उससे पहले नहीं समझा था। अब इंतज़ार साहब तो एक बड़ी शख्सियत थे, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो एक सारी महफिल को एक पुख्ता रंग दे देते थे। फिर ये है कि बड़े अदीब जो हैं वो अकेले अकेले नहीं फिरा करते। इंतज़ार साहब के साथ मसूद अशरफ साहब होते थे, इकरामुल्लाह साहब होते थे, कभी कभी असगर नदीम सैयद साहब आ जाते थे, और भी हमारे दोस्त आ जाते थे जो जिनके साथ हमारा गयास भाई बैठे हुए हैं सामने, वो कभी वो भी आ जाते थे। जाहिद डार भी एक कोने में हमेशा आके बैठते थे, चूँकि जाहिद डार जो है वो एक अकेला अपनी किस्म का अकेला इंतहाई ज़हीन, बहुत अच्छा लिखने वाला, बहुत अच्छी याद रखने वाला, बहुत अच्छा खजाना जमा करने वाला, वही होते थे। तो वो हम इसमें ये महसूस करते थे कि जो कुल्फतें सियासत की, सकाफत की, ग़िलाज़त की, तमाज़त की हैं, वो कुछ हफ्ते के लिए छोड़ दिए हैं और हम अपनी दुनिया में बैठ गए हैं, जिसमें अभी कुछ थोड़ी बाद गाफिर साहब हैं जो उनसे पता लगेगा कि इस बरस उन्होंने कितनी 2 किताबें छापी है, 1 किताब छापी है लाहौर के बारे में, या शीरी पाशा से पता लग जाता था कि फिल्मी दुनिया में क्या हो रहा है और टीवी की दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरीके से किया जाता है। या हमारे एक दोस्त हैं कासिम जाफरी साहब, मैं उन्हें हमा कल्चर कहता हूँ, तो वो इस तरह से ये दुनिया दूसरी दुनिया में पहुँच जाते थे। फिर शाहनवाज जैदी साहब ईरान का हुस्न बगल में लिए हुए और हाथ में टैगोर का तर्जुमा लिए हुए, तो ये देखिए ना, फिर इसमें हमें मुस्कुराने का मौका मिल जाता था। और वो हंसी जो हम भूल गए हैं, जो हमारे फेफड़ों में से निकला करती थी कभी, वो भी कभी कभी अदा हो जाती थी। तो इसलिए ये बैठक का कमाल मेरे दादा का है। और फिर एक तरह से हम रिजुविनेट होके अगले महीने की कुल्फतें सहने के काबिल हो जाते थे, और फिर 1 महीने के बाद फिर जिंदगी का नया दौर चल जाता था।
तो इसलिए इसमें है, इसमें हमारी ख्वाहिशात हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा माशरा ऐसा होना चाहिए जिसमें म्यूज़िक पे कतरन न हो, जिसमें शेर व अदब पे पाबंदी न हो, जिसमें लोग खुल के बात कर सकें, सियासत पे बात कर सकें, सकाफत पे बात कर सकें, और हमारे सामने जो जुल्म हो रहा है उस पर एहतजाज कर सकें, कितनी दबी ज़बान में सही, या हमारे आवाम के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका भी हम जिक्र कर सकते हैं। फिर हमारी शाहिदा शाह जो हैं ये मायूसी नहीं होती हैं, ये हर वक्त उम्मीद का के शेर सुनाती रहती हैं, तो जब वो सुनाती बहुत अच्छे लगते हैं, जब अगले दिन हालात पे सामना करना होता है फिर कहता है कि अच्छा अगले महीने पूछेंगे। ये है, या गुलनार बैठी हैं, एक्टिविस्ट बैठी हैं, इन्हें आप देखें कि छोटी सी दुनिया हमारी ऐसी थी जिसको कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बिखरी हुई समाज का नुमाइंदा भी हैं और अपने अपने तर्ज से अपनी जगह खाएंगे। ज़िया मोहिउद्दीन ने अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर बैठक के बारे में किताब में लिखा है, और जाफरी साहब और शिरीन पाशा जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को ट्रैवल एजेंट को कहा हुआ है कि वो बीच में नहीं आना चाहिए। और मसूद अशर साहब से शुक्रिया। असल में मुझे याद आता है जब पहले हम कहानियाँ दास्तान सुना पढ़ा करते थे कि रास्ते में लोग जा रहे हैं, शाम हो गई है और सर्दी का मौसम है, अलाव जलाया है और सब आसपास बैठ गए, तो मेरे दादा ने ये अलाव जलाया है, अलाव जलाया है कि आओ सब इकट्ठे बैठ जाओ और बैठ के बात करो, जिसके जो मुंह में आए, जिस तरह जीभ में आए, चाहे आपस में इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो, सब बात करें। लेकिन यहाँ हमें अभी इस वक्त डॉक्टर मुबश्शिर हसन को याद करना चाहिए। वो आ सकते थे लेकिन ये कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो नहीं आए। वो मुस्तकिल यहाँ आया करते थे और उनकी जो चोटें चलती थी वो हुसैन नकी से चलती थी। हुसैन नकी उनके किसी न किसी बहाने उनको ऐसी चोट कर दिया करते थे कि डॉक्टर साहब बातें शुरू लंबी बातें शुरू कर दिया करते थे। और सबसे बड़ी असल जो बात जो मैंने रहमान साहब ने बड़ी तफसील की कि मेरा ख्याल ये है कि मुझे दूसरे शहरों का नहीं मालूम, कम से कम लाहौर में कोई ऐसी महफिल नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ हर मिजाज का, हर ज़ौक़ का, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला, हर सियासी ख़यालात नज़रियात रखने वाला, हर अदबी नज़रियात रखने वाला इकट्ठा न हो जाता हो, इकट्ठे होकर आपस में बातें न करता हो। अच्छा, इससे फिर ये होता है कि हमें सीखने का मौका मिलता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे को सिखाते हैं, दोनों बातें चला करती हैं। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल एक यूनिक, एक बिल्कुल नादिर सा तजर्बा है। अब तजर्बा इस तरह कहिए कितने साल हो गए और नहायत कामयाब तजर्बा है। या ऐसे वाना आम तौर पर ये होता है कि इस किस्म की महफिलें शुरू होती हैं और शुरू होने के बाद फिर चंद महीने चलती हैं या चंद साल चलती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन दाद दीजिए नज़र अली दादा की हिम्मत को और हौसले को कि ये साल से चला रहा है और यकीन कीजिए ये अभी चलेगा। इसलिए हम जो ये कहते हैं ना कि ये था नहीं है, हम अब भी ये होता है और अब भी इस तरह का होता है। हम मौसीकी सुनते हैं, ऐसी मौसीकी जो भूल भाल गए हैं लोग, वो मौसीकी सुनाया करते हैं, उसके बाद फिर बात होती है। हम सबसे पहले पकड़ते हैं रहमान साहब को कि भाई आजकल हमारे इस मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें तो परेशानी ये है कि हमारे साथ होने वाला क्या है, जो हो रहा है आजकल वो तो हम बस बर्दाश्त कर लेंगे, क्या आगे जो कुछ होने वाला है हमारे लिए काबिल बर्दाश्त होगा या नहीं होगा। तो रहमान साहब हमें तसल्ली दे देते हैं कि नहीं, हिम्मत रखो, हालात जैसे भी आएंगे तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है तो तुम बर्दाश्त कर सकोगे।
अच्छा, फिर अब अदब की बात हो रही है। इंतज़ार, शहजाद इंतज़ार के बारे में तो बहुत बातें आप जानते हैं कि बहुत बड़ा अफसाना निगार था, बल्कि मेरा ख्याल है कि हमारे उर्दू में सबसे बड़ा अफसाना निगार था। शहजाद के बारे में ना हम शायरी के बारे में तो जानते, लेकिन ये नहीं जानते कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। बहुत अच्छी उसकी नज़र थी फ़लसफ़े पर, नफ्सियात पर, साइंस पर। साइंस के जो डेवलपमेंट जदीद से जदीद तर हो रही है, उस पर शहजाद अहमद की बहुत अच्छी नज़र थी और हम उससे सीखा करते थे। ज़ाहिर है जिस तरह के वो हुआ करता था, तो ये ऐसी चीज़ थी, थे नहीं, अब भी हम सीखते हैं। और हमारे दरमियान जो लोग इस वक्त बैठे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पर एक मोती हैं जो जिससे हम सीखते हैं और करते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये उम्मीद नहीं, मुझे तो यकीन है कि ये साल साल इसी तरह चलता रहेगा। अल्लामा का एक शेर था कि मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। इस मोटो को लेके हम चलते हैं। अब मैं शीरीन और खालिद गयास साहब इंसाइक्लोपीडिया हैं फिल्म मीडियम पे। अब यहाँ पे वक्त की बड़ी कमी है, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट हर मैं सोच रही थी बोल दें जी, कुछ। शुक्रिया। मैं ये सोच रही थी कि आप लोग कह रहे होंगे कि ये इतना कुछ पता नहीं कितने घंटों में सारा कुछ होता होगा, कि सबकी ख्वाहिशें भी बीच में आ रही हैं, नाराज़गियाँ भी बीच में आ रही हैं और रिवाइवल भी हो रहा है चीज़ों का। लेकिन इस बड़ा स्ट्रिक्ट 1 घंटा था, 60 मिनट्स के अंदर ये सब कुछ हो जाता था। ये इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बन चुका था कि म्यूज़िक जो है उससे कुछ थोड़ा सा इत्मीनान होगा, कुछ ज़रा सब लोगों की सोच जो है वो उभरेगी और खामोशी में। सो ये वो चीज़ें हैं जो आमतौर पे मेरे ख्याल में it worked, this whole pattern worked because we don't realize कि साइलेंस भी कोई चीज़ है। हम कभी साइलेंस को महसूस नहीं कर रहे होते उस तरीके से, और वो इतना कुछ आगे से रिवॉर्ड कर देता है। अच्छा, बीच में चाय भी चल रही होती है थोड़ा सा, और एंग्जाइटी तो इस वक्त अब हमारे इस दौर में एंग्जाइटी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी होना जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ भी है और बहुत मुश्किल चीज़ भी है, और challenging. I want to use the word challenging. It's not hard to be a Pakistani, but it's challenging to be a Pakistani. और मैं थोड़ी सी पाकिस्तान से बाहर भी साल में कुछ देर गुजारती हूँ अपने बच्चों के साथ टोरंटो में, तो मैं दोनों दुनिया को देख रही होती हूँ। और वहाँ पे मुझे बैठक बहुत याद आती है। मुझे वहाँ लगता है कि ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इस तरीके से, वहाँ इतने दूर बैठ के वो ये सोच रहे होंगे, वो ये कर रहे होंगे, तो इसका मीनिंग हम सब के दिलों में बहुत है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें ये जो 80s का पीरियड है जिसमें ये सारा शुरू हुआ, फैज़ साहब ने उसको इनिशिएट किया, तो इसमें हम सब लोग बहुत सी चीज़ों में से गुजरे हैं। आप सब लोग भी उसमें ही हैं, और सब कुछ थोड़े थोड़े घबराए हुए बहुत सारी चीज़ों से। तो उसमें जो मौसीकी का था, जो हमारा विरसा था, मैंने कुछ एक ज़माने में रिसर्च की थी कि बॉलीवुड के अंदर पार्टीशन से पहले लाहौर का क्या मकाम था। तो सारे शहरों के लोग टैलेंट वहाँ बॉलीवुड में जाता था, उससे वो इतना बड़ा कोई इंडस्ट्री की सूरत हाल जो है वो निकली। तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा लाहौर से जाता था टैलेंट का, और उस टैलेंट में म्यूज़िक, कॉम्पोजिशन, राइटिंग, एक्टिंग, वो सब लोग थे। और मेरे ख्याल में वो क्योंकि ज़रूरत स्टूडियो की नहीं थी, वरना लाहौर में शायद अगर स्टूडियो बनता तो बहुत ही कामयाब होता, उस लेवल का होता जो बॉम्बे में था। लेकिन क्योंकि उस सारी चीज़ को ज़रूरत नहीं थी, ये टैलेंट जो है ये सारा जाता था। मद्रास से टैलेंट और किस्म का जाता था, लखनऊ से टैलेंट और किस्म का जाता था, लेकिन लाहौर का टैलेंट जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी था। सो कहने का मतलब ये भी है कि हमारा अपना टैलेंट जो है उसको मैं ये नहीं कह रही कि पीछे चले जाएं, यू डोंट हैव टू गो बैकवर्ड्स टू कम, बट यू कैन गो बैक टू गो फॉरवर्ड। तो इस किस्म की कोई सूरत हाल हर एक के जहनों में हो, क्योंकि एक नई पौध इस वक्त जो आ रही है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मैं समझती हूँ कि
टीचिंग इस वक्त मैं करती हूँ, डिपार्टमेंट सेटअप किया फिल्म का, और फिल्म एक नया ज़रिया है जो कि हर तरक्की पसंद मुल्क ने, ख़ास तौर पे रशिया ने इसको प्रूव कर दिया था कि जिस माहौल में लोग पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ पे फिल्म जो है वो एक अजीब व गरीब काम कर सकती है। और लेकिन वो उस तरीके से हमें बनानी पड़ेंगी फिल्में कि जिससे आपको आपकी सोच उभरे और आप टिकट भी लेकर उस किस्म की सोच को उभारना चाहें। सिर्फ डांस गाना देखने के लिए आप टिकट ना लें, लेकिन अपने आप को एग्जामिन करने के लिए, अपनी सेंसिटिविटीज़ को उभारने के लिए भी टिकट लेने की शायद ज़रूरत अब पड़ गई है। तो उस तरह की फिल्में हम सिखाते भी हैं और हमारे स्टूडेंट्स अमेजिंग काम कर रहे हैं जो अब आने वाला वक्त मेरे ख्याल में अब बहुत रोशन है। लेकिन इस फ़िलहाल पिछले 10-15 सालों में जो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और जो सब लोग और खोज भी हैं, ये सब लोग बहुत सख्त हैं। आइए रहमान साहब मुझे एक दफ़ा पूछते हैं, बहुत अच्छी आपने फिल्म बनाई है लेकिन उसका थीसिस क्या है? तो मुझे तो इनको भूल गया मेरा ख्याल में, लेकिन मुझे नहीं भूला। मैं अपनी हर फिल्म जब प्लान करती हूँ मैं सोचती हूँ मेरा थीसिस क्या है, कहना क्या है मैंने, पहले सीन से लेके आखिर तक मुझे याद रहा इनका। जाफर साहब कुछ साहब, मेरी दास्तान कोई ऐसी लंबी नहीं है। वो 5 साल इस्लामाबाद में जिला वतनी गुजारने के बाद जब मैं लाहौर आया अपने वतन वापस, तो नए भाई मिले एक जगह, तो कहने लगे कि मियाँ वो जुमे को मिलते हैं, आ जाना। तो हमने कहा आ जाएंगे, तो हम आ गए। तो वहाँ अब ऐसे ऐसे लोग के मतलब इंतज़ार हुसैन साहब, शहजाद साहब, मुन्नू भाई, सिद्दीक़ा आंटी, उनकी बेटियां बैठी हुई हैं, और डॉक्टर मुबशर रहमान साहब और नकी साहब, मसूद अशर साहब, मतलब एक लंबी लाइन, काजी जावेद साहब, शीरू। तो अब जैसा इन्होंने बताया, मौसीकी से शुरू करके और फिर हालात हादरा पे हम अपना गम गलत करने आते हैं असल में वहाँ पे। और ये जो 15-20 साल से मैंने उसको ज्वाइन किया है, तो मेरे सिर्फ 4 नागे हुए हैं जुमे के। तो जुमे के नागे का मैं कायल नहीं हूँ। तो वो बड़े अच्छे गुजरते हैं और ये इंशाल्लाह गुजरते रहेंगे। नकी साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बोल दिया जी। थोड़े 1 मिनट के लिए सिद्दीक़ा बेगम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी कहना चाहता हूँ कि वो भी इस महफिल के एक सितारा थी, और जब तक उनकी सेहत ने इजाज़त दी बाकायदगी से आती थी और एहतमाम से आती थी। जिस तरह से वो अपना पर्चा निकालती थी अपने वालिद की याद में, जी अदब लतीफ़, जो एक ज़माने में आप याद करें तो हमारे अदब में कम से कम लाहौर में अपनी पर्चों में इमाम माना जाता था, और जिसने तरक्की पसंद अदब की तरवीज में बहुत अहम किरदार अदा किया था। उसमें लिखने वाले भी बड़े थे। इस ज़माने में फैज़ साहब उसके एडिटर थे शुरू के ज़माने में। फिर बहुत अरसे तक हमारे वो क्या नाम था, मिर्ज़ा अदीब साहब, जी हाँ, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो हमारे ज़ाती दोस्त भी थे, मोहतरम भी थे। लेकिन सिद्दीक़ा बेगम अपनी लगन से बग़ैर वसाइल के और कभी वसाइल की कमी के बावजूद निहायत एहतमाम से छापती थी और सालनामा भी छापती थी, जो बड़ा ज़ख़ीम होता था। और उनका ये कमाल था कि उनके पर्चे में लिखने के लिए हिंदुस्तान से मुस्तक़िल कंट्रीब्यूशन आते थे। तो ये था, और बड़ी मोहब्बत वाली खातून थी, और उन्हें अच्छी खाने की चीज़ लाने का बहुत शौक़ था। अगरचे इस मामले में मेरी दादा बहुत वसील रुकल वाक़ दिखा नहीं सकते आपको, जो ज़ियाफ़त हमारी होती करती है, अफसोस से दिखा नहीं सकते आपको। सिद्दीक़ा बेगम के बारे में इसलिए मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा उनके साथ। वो इस महफिल में आती थी तो ये समझ लीजिए रौनक हो जाती थी उनके आने से, जिस तरह वो आती थी और जिस तरह बात करती थी। अभी आपने अदब लतीफ़ की बात की,
तो देखिए कि ये अदबी रिसाला वो है जो 1935 से चल रहा है और अब तक छप रहा है, और इसमें सिद्दीक़ा बेगम का बहुत बड़ा हाथ है। अगर सिद्दीक़ा बेगम की हिम्मत अफजाई न करती तो अच्छा, उसमें आपने नाम लिया, कौन है बड़ा लिखने वाला मशहूर जो उसका एडिटर नहीं रहा? किशोर नाई भी रही, मैं भी कुछ अर्से वहाँ पर कुछ करता रहा, और सब बहुत अच्छा पर्चा निकाला उन्होंने। और अब तक खैर अभी उनकी साहबजादी सामने बैठी है सवीला, वो कह रही थी कि हम उनका ख़ास नंबर छापेंगे, ज़रूर छापना चाहिए उनका ख़ास नंबर, इसलिए कि उस पूरे ख़ानदान का उर्दू अदब पर बहुत बड़ा एहसान है। वक्त ख़त्म पे है, तो हमारा जो आखिरी सेगमेंट है उसमें शायरी है। 2 शायर हमारे पास मौजूद हैं। शाहिदा से रिक्वेस्ट है कोई छोटा सा टुकड़ा सुना दें, फिर शाहनवाज दे। बहुत शुक्रिया। बैठक के लिए एक जुमला कहूँगी कि जब से मैंने बैठक ज्वाइन की है मुझे हमेशा सीखने का मौका मिलता है। जितनी तशफ़ी, इत्मीनान, मोहब्बत, खुलूस और सुकून बैठक में मिलता है वो शायद ज़िंदगी के किसी और लम्हे में मुयस्सर नहीं आता। चलते रहते हैं मगर फिर भी कहीं जाते नहीं, चलते रहते हैं मगर फिर भी कहीं जाते नहीं, हमने जाना हो जहां रास्ते वहीं जाते नहीं। और दरिया की मुसाफत में ज़मीं का नहीं छोड़ा, दरिया की मुसाफत में ज़मीं का नहीं छोड़ा, एक तरफा मोहब्बत में कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया। और उशाक चले आए हथेली पे लिए सर, उशाक चले आए हथेली पे लिए सर, वो हुस्ने तलब था कि नहीं का नहीं छोड़ा। और तारों भरा फलक है बिछोना तो है नहीं, तारों भरा फलक है बिछोना तो है नहीं, इस चांदनी के तख्त पे सोना तो है नहीं। और आंसू गिरे जो संग पे रास्ता बनाएंगे, आंसू गिरे जो संग पे रास्ता बनाएंगे, पत्थर की आंख में कभी रोना तो है नहीं। और निस्बत है अपनी सैयदे कौनो मकान से, निस्बत है अपनी सैयदे कौनो मकान से, पहचान अपनी शाहिदा खोना तो है नहीं। और चारों तरफ मैं उसके कदम ढूंढती रही, चारों तरफ मैं उसके कदम ढूंढती रही, इस घर में कोई 5वां कोना तो है नहीं। और ख्वाबों से कोई ख्वाब बनाने में लगी हूँ, ख्वाबों से कोई ख्वाब बनाने में लगी हूँ, एक दश्त में हूँ प्यास बुझाने में लगी हूँ। और बतलाओ कोई इसम मुझे रद्दे बला का, बस 2 शेर। बतलाओ कोई इसम मुझे रद्दे बला का, मैं आखिरी किरदार निभाने में लगी हूँ। वो सिहन में अफलाक लिए कब से खड़ा है, वो सिहन में अफलाक लिए कब से खड़ा है, मैं छत पे हूँ बादल को उड़ाने में लगी हूँ। और जिस वक्त से आने का सुना है तेरा घर में, जिस वक्त से आने का सुना है तेरा घर में, चीजों को मैं रखने में उठाने में लगी हूँ। वैसे खालिद क़यास साहब को यहाँ स्टेज पे होना चाहिए था, वो इंसाइक्लोपीडिया है लाहौर का। नहीं, पहले तो मैं नईर भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक चीज़ जो भूली हुई है उसको ज़िंदा रखा है। इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वक्त के साथ चीज़ें भी बदलती जा रही हैं। जो चीज़ें आपने सुनाई ये पास्ट है, हम पास्ट पे रुक गए हैं। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपकी जितनी धुनें जितनी बातें वो 1974 तक हैं और टीवी का ज़वाल 92-93 से शुरू हो गया। तो देखिए इतने साल गुजर गए, आप अभी उन्हीं पुरानी बातों पे रुके हुए हैं। हमें चाहिए कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, इतने बड़ा खजाना हमारे पास है, इनका आप किसी टेनर के साथ देखें कि ये गुफ्तगू करें और जो यंगर जनरेशन है वो इंस्पायर हो। इस वक्त जब हम इस एज में थे,
हमारा हर आदमी गुणी था ऑनेस्टली, और हमें अपने फन का नहीं पता था। हमें ड्रामा नहीं लिखना आता था, हमने ड्रामा किया। हमें टीवी के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, हमने एक नज़्म पेश खिदमत है, इसका उन्वान है तर्क ताल्लुक़। हमारे दरमियां कुछ चीज़ रहने दो, हमारे दरमियां कुछ चीज़ रहने दो, कोई दर खटखटाने को, कोई दीवार गिरने को, कोई उम्मीद मरने को, कोई कोसार हटने को, कोई दावा कोई वादा परखने आजमाने को सताने को, हमारे दरमियां कुछ चीज रहने दो, हमारे दरमियां कुछ चीज रहने दो, कोई दर खटखटाने को, कोई दीवार गिरने को, कोई कोसार हटने को, कोई उम्मीद मरने को, कोई वादा कोई दावा परखने आजमाने को सताने को, हमारे दरमियां कुछ चीज रहने दो। और किनारे ही सही दोनों, मगर एक बीच में दरिया तो बहने दो, हमारे दरमियां कुछ चीज रहने दो। अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं से क्या बनाऊंगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं से क्या बनाऊंगा, कहां अटकाऊंगा सांसें, तुम्हारी याद किस खूंटी पर टांगूंगा। हवा के हाथ पर लिख कर नहीं जाओ, हवा तो सब मिटा देगी भुला देगी, हमारी दास्तां औरों को कहने दो, हमारे दरमियां कुछ चीज रहने दो। और सुना है दुश्मनी भी एक ताल्लुक है, सुना है दुश्मनी भी एक ताल्लुक है, तो ये तलवार ही खींचो, इधर एक जख्म ही फेंको, कोई झंकार की आवाज आए, चीख उभरे, दर्द ठहरे, खून बहने दो, हमारे दरमियां कुछ चीज रहने दो। एक गजल के कुछ अशार है। शाख हवा के साथ लरसता फिर वही रास्ता, शाख हवा के साथ लरसता फिर वही रास्ता, मंजिल की जानिब से हटता फिर वही रास्ता, चांद सितारों तक जाने की फिर वही ख्वाहिश, चांद सितारों तक जाने की फिर वही ख्वाहिश, और बादल के पैरों से लिपटा फिर वही रास्ता, और वैसा ही एक अजनबी गांव पहले जैसा, वैसा ही एक अजनबी गांव पहले जैसा, काजल की रंगत में भीगा फिर वही रास्ता, वही जमाना वही मोहब्बत वही कहानी, वही जमाना वही मोहब्बत वही कहानी, फिर वही आंसू फिर वही वादा फिर वही रास्ता। और बल खाती और शोर मचाती फिर वही नदियां, बल खाती और शोर मचाती फिर वही नदियां, साथ साथ खामोश गुजरता फिर वही रास्ता। एक बेरस मामूल में जकड़े, एक बेरस मामूल में जकड़े हुए मुसाफिर, एक बेरस मामूल में जकड़े हुए मुसाफिर, शाम सवेरे फिर वही रास्ता फिर वही रास्ता, शाख हवा के साथ लरसता फिर वही रास्ता, मंजिल की जानिब से हटता फिर वही रास्ता। शुक्रिया। There is a short video covering the past activities. अगर आप दो चार आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। डॉक्टर मुबशर साहब होंगे यहाँ, रहमान साहब है, मसूद अशर साहब है।
भाई मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ हम सब की तरफ से कि ये सभी कुछ है तेरा दिया हुआ। हैदर इब्राहिम भाई का- की लेकिन हैदर चाय का- नहीं मिली आज, बहुत मजेदार चाय होती थी। हैदर इब्राहिम का जिक्र करें, हु इज द रियल प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ एवरीथिंग। नहीं, दादा दो लफ्ज मुन्ना भाई के लिए, जी जी प्लीज। क्योंकि जब वो आते थे ना जी जी तो वो तो अपने जात में एक अंजुमन जी जी जी, और फिर हम उनसे फरमाइश करते थे और उनको अपना सारा कलाम याद था जी जी आखिर तक। और हम उनसे पूछते थे मुन्ना भाई अब कभी तो क़यामत आएगी ना हैं? जी माशाल्लाह। और कभी कोई अच्छा एहतसाब बहादुर भी आ जाएगा, चीफ कमिश्नर एहतसाब बहादुर, क्या कह रहे हैं? नहीं वो भी कभी अच्छा आ जाएगा। लेकिन वो एक रौनक काबिल आदमी था जो शेर पढ़ता था। देखा आपने बैठे में बहुत कुछ हालात ख़राब थे, तबीयत भी ख़राब थी, कई दफ़ा मौत को चक्कर लेकर आ गए, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ा। माशाल्लाह पैदा हुए हैं। ग्रेट। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी आपको थोड़ा